Okay, so today we are going to do the next topics using thesaurus, finding and replacing the text, and in formatting we'll do changing the text keys. So I have opened our project mobile computer on which we are working. So first of all, what is thesaurus? So thesaurus is a list of words grouped together containing synonyms and antonyms. So basically thesaurus में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, पर्टिकुलरली लिस्ट होती है वर्ड्स की जिनको हमने एक ग्रुप में साथ में असेंबल कर दिया है, ग्रुप में उनको रखा है. सो इन दे कंटेन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सिनोनिम्स मीन्स वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग and antonym means words having opposite meaning. Okay, so basically हम इससे करते क्या हैं that suppose हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को उसके सिनोनिम से अगर रिप्लेस करना चाहते हैं जो उसका मीनिंग और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो हम किसी भी वर्ड को उसके सिनोनिम से रिप्लेस कर सकते हैं and it increases our knowledge as well. Okay, so like we'll select this enough word. Now we have to click on review tab. This is your review tab. Now click on it. Now here you can see the thesaurus option. So we'll click. जैसे हम इस पर click करेंगे, on the right side we'll get a research task pane. You can see here, this is the research task pane. So these are the synonyms you can see here, sufficient, adequate, जो हम enough की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. Okay. So like it's a word, mobile device is a computing device small enough to hold in your hand. मतलब इतना छोटा होता है कि easily हम उसको अपने हाथ में hold कर सकते हैं. Okay. So we can replace it with the word sufficient. So आप sufficient के सामने ये drop down arrow देख रहे हैं, you have to click on this. नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट. जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आपका एनफ वर्ड रिप्लेस हो जाएगा सफिशेंट से. सी यहाँ पे सफिशेंट आ गया. ओके, इन द सेम वे इफ विल टेक पॉपुलर. आफ्टर सेलेक्टिंग द पॉपुलर वर्ड क्लिक ऑन thesaurus again. Now you can see admire, trendy, in style, journal, prevalent, current, widespread, standard. So the most current भी हम यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ पॉपुलर. prevalent यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन रिप्लेस दैट वर्ड अगेन. जो जिस भी वर्ड से आपको रिप्लेस करना है, क्लिक ऑन दैट drop down arrow. Now click on insert and you will see here when I'll click the popular word will change by current. Okay, so this way we can use the thesaurus and we have to click on this close button here, this cross, to close this. Okay, now next coming to the finding and replacing text. So in our document we need to change the word or text with some other text. मोस्ट ऑफ कई बार होता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट को चेंज करना पड़ जाए न्यू टेक्स्ट से. सो इन दैट केस वी कैन यूज़ फाइंड एंड रिप्लेस कमांड. फाइंड कमांड क्या करता है, इट इज़ यूज टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड और टेक्स्ट. एक पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए सर्च करेगा. और रिप्लेस कमांड क्या करेगा, जो भी हमने वर्ड सर्च किया है, रिप्लेस कमांड उस वर्ड को या उस टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट से या फिर न्यू वर्ड से रिप्लेस कर देगा. ओके, लाइक सपोज in this document there are computer words many times. so suppose हमने computer word को misspell कर दिया और हर जगह पे हमने wrong spelling डाली है computer की. okay, so
हर जगह आप देख सकते हैं जैसे ही मिसस्पेल्ड हुए हैं उनके नीचे रेड वेवी लाइन आ गई है. ओके, so we can correct using spelling and grammar, but it will take time because there are almost I think 8 words जहाँ पे हमें करेक्शन करनी है. तो हर एक पे हम राइट क्लिक से भी करेंगे तो it will take time. So what we can do is under home tab, this is your home tab, and home tab के अंदर I told you we have clipboard group, font group, paragraph group, styles group, and here is the editing group. In editing group you can see here the replace command, and you can use the shortcut also control plus H. So हम replace पे जैसे ही click करेंगे it will open this dialog box, find and replace dialog box. So under find and replace dialogs here find what, इस बॉक्स में हमें टाइप करना है वो वर्ड जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि जिसे हमने काफ़ी बार मिसस्पेल कर दिया है. तो विल राइट हेयर जो भी स्पेलिंग, हम स्पेलिंग वही लिखेंगे जो हमने यहाँ पे मिसस्पेल की है. नाउ हम इस वर्ड को सर्च करके इसको रिप्लेस करना चाहते हैं न्यू वर्ड से. सो रिप्लेस विद में हम डालेंगे इसका करेक्ट वर्ड, दैट इज़ कंप्यूटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ विल क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट. फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे. जैसे ही फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम, इट विल हाईलाइट द फर्स्ट वर्ड सी, यानी कि ये स्टार्टिंग से डॉक्यूमेंट को सर्च करेगा और इस वर्ड के लिए फाइंड आउट करेगा. सो सबसे पहले वर्ड उसने सर्च कर लिया है. सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू रिप्लेस इट. सो अगर हम सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जो वर्ड हाईलाइट हुआ है वही चेंज होगा विद द वर्ड कंप्यूटर. सो इसकी प्लेस पे कंप्यूटर आ जाएगा. बट अगर हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ भी ये वर्ड है हर जगह पे आपका वो रिप्लेस होके कंप्यूटर आ जाएगा. ओके, सो पहले फर्स्ट टाइम विल क्लिक ऑन रिप्लेस और फिर देखते हैं. देखो रिप्लेस पे जैसे ही किया आपका ये फर्स्ट करेक्शन हो गई है. अब जो नेक्स्ट करेक्शन थी ये उस पर आ गया है, यहाँ पे भी कंप्यूटर वर्ड था. ओके, नाउ विल क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल. तो हर जगह आपकी वो करेक्शन एक ही बार में हो जाएगी. और जैसे ही वो कंप्लीट होगा इट विल शो यू द मैसेज वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स search of the document and has made 7 replacements, and then click on OK. Okay, and now close it. Click on close. So आप देख सकते हो हर जगह पे करेक्शन हो गई है. So in this way we can do this correction. तो जब हमें काफ़ी जगह पे रिप्लेस करना हो so we'll use find and replace. Now next is formatting. Formatting means to change the appearance, to change the look of your document. अपने डॉक्यूमेंट की लुक को चेंज करना. ओके, जैसे आप किसी भी फंक्शन में जाते हो तो अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हो ना, आप ब्यूटीफुल लगते हो, स्मार्ट लगते हो. इन द सेम वे हम अपने डॉक्यूमेंट को भी स्मार्ट और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट्स. सो द फर्स्ट फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट इज़ चेंज केस. So I'll show you here. This is the change case option. I'll take the mouse pointer there and you can see it clearly. It will appear also change case. Change all the selected text to uppercase, lowercase or other common capitalization. Okay. तो ये चेंज केस ऑप्शन है. सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे. आई हैव सेलेक्टेड दिस फर्स्ट सेंटेंस हियर. ओके, नाउ आप देख सकते हैं इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, कैपिटल. सो चेंज केस में हमारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं. वी हैव 5 डिफरेंट ऑप्शन. फर्स्ट इज सेंटेंस केस. एज आई विल शो यू ऑल्सो. जैसे ही हम चेंज केस पे क्लिक करेंगे यू कैन सी द 5 ऑप्शंस हियर. फर्स्ट इज सेंटेंस केस.
सो सेंटेंस केस में क्या होता है, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस विल बी इन अपर केस एंड रेस्ट विल बी इन लोअर केस। यानी कि सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। ओके, कैपिटल लेटर्स को हम बोलते हैं अपर केस और स्मॉल लेटर्स को हम बोलते हैं लोअर केस। ओके, तो ये ऑलरेडी सेंटेंस केस में है। सो अभी हम नेक्स्ट करेंगे लोअर केस। तो जैसे ही हम लोअर केस पे करेंगे, लोअर केस का मतलब क्या है, स्मॉल लेटर्स। तो आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सारा स्मॉल में हो जाएगा। देखो सर, फर्स्ट लेटर कैपिटल था, वो भी स्मॉल हो गया। अगेन विल क्लिक, नाउ अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स। तो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कैपिटल हो जाएगा। सो यू कैन सी इट बिकम्स कैपिटल। नेक्स्ट इज कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल होंगे। सो व्हेन आई विल क्लिक ऑन इट, यू विल सी द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल एंड रेस्ट आर स्मॉल। हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल है और बाकी लेटर स्मॉल हैं। सो दिस इज योर कैपिटलाइज ईच वर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज toggle case. Toggle case is the reverse of capitalize each word. लाइक ये कैपिटलाइज ईच वर्ड में आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का कैपिटल है और बाकी स्मॉल है। तो टॉगल केस में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। जो लेटर्स आपके अभी कैपिटल हैं वो स्मॉल में हो जाएंगे और जो स्मॉल हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। सो विल सी द चेंज, व्हाट विल हैपन। जस्ट क्लिक ऑन द टॉगल केस, सी फर्स्ट लेटर कैपिटल थे हर एक वर्ड के, वो स्मॉल हो गए और जो बाकी लेटर स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए। सो दिस वे यू कैन अप्लाई दिस चेंज केस on the selected text. Okay, so everyone just try it by yourself also and read page number 74, 75 and 76. Okay, and wherever you have any problem, just underline it with pencil in your book and ask during the class. Okay, till then take care. Thank you.